Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the third chapter of your short story, The Lost Child, which was written by Mulk Raj Anand, a distinguished writer of Indian writing history. He was born on 12th of December 1905 and was died on 20th September 2004. He was born in Peshawar. He has got his education at Amritsar and studied philosophy from London University in 1925 when he got the scholarship from the government. He had got his doctorate from Cambridge for his style and expressions. He had written many books. His famous works are The Big Herd, The Sword and the Sickle, Across the Black Water, and The Coolie and the Untouchable. The Prescribed Lesson, The Last Child was a famous story of Mulk Raj Anand in which he has provided a ground picture of a behavior of a child which was lost from his parents and suffered much. What was his behavior when he was with his parents and without his parents? Let's discuss about the summary of the lesson and know what happened with the child. We are going to know about the summary on the given topics. The first one is the spring festival and the fair. What was the condition at that very time? What was the condition at that very time? It was the season of spring, means वसंत ऋतु का समय था, and there was organized a fair in his locality. The child was eager to go to the fair with his parents. समय क्या था उस समय? वसंत ऋतु का समय था, चारों ओर फूल खिले होते हुए थे, मौसम बहुत ही अच्छा था और ऐसे समय में उस बच्चे के गांव के पास एक बड़ा सा मेला लगा हुआ था जहां वह अपने माता पिता के साथ जाने की इच्छा रखता है और उसके माता पिता उसे लेकर के उस मेले में जाते हैं. A child cheerful and playful. What was the condition of the child? We are going to discuss under this topic. The child was very cheerful because his parents were with him, and when he saw the beauty of the environment, beauty of the nature, he became more cheerful and moved here and there in glee. Means to say, वह बालक बहुत ही प्रसन्नचित्त था. प्रसन्न क्यों था? क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ थे और पहली बार वह उनके साथ बाहर कोई मेला देखने के लिए जा रहा था और साथ ही साथ मौसम भी बहुत सुहावना था क्योंकि बसंत की ऋतु थी, जो चारों ओर फूल खिले हुए थे और नेचर की इस सुंदरता को देख करके उस बच्चे का मन जो था वह बहुत भाव विभोर हो उठा था और इस कारण वह नाचते उछलते कूदते मेले की ओर बढ़ चला था. Beauty of nature and field. What was the condition of the field at that very time? The writer had described in this very lesson that the child saw going on to the fair in his way that there were a broad field of mustard crop where the colorful houses and colorful robes wearing people were seen to him. He also saw the colorful butterflies flying over the mustard field. Spring season है, as we all know, in the spring season the crops were laden with the beautiful flowers. हम जानते हैं कि वसंत ऋतु में सभी फसलें और फूल जो हैं वो फूलों से लद जाया करते हैं. तो उस समय क्या स्थिति थी जब बालक अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा होता है. रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में सरसों के पौधे लगे हुए हैं जिसमें पीले पीले फूल खिले हुए हैं. ऐसा लगता था जैसे वो इतने गोल्डन कलर के दिख रहे थे, इतने पीले रंग के दिख रहे थे, जैसे
जैसे लगता था कि कोई सुनहरे रंग की नदी जो है वह उमड़ पड़ी हो जब हवा वहाँ पर चलती थी। और उन खेतों से लगे हुए उसने रंग बिरंगे घरों को देखा जहाँ लोग कलरफुल कपड़े पहने हुए मेले को जाने की तैयारी में लगे हुए थे। बालक भी प्रसन्नता के साथ अपने माता पिता के साथ होते हुए आगे को चल पड़ता है। थोड़ी देर के लिए उसका मन उस खेतों की सुंदरता और उन तितलियों में भटक जाता है जो उस पेड़ों पौधों के ऊपर उड़ रही थी। In the group, when the child was going with his parents to the fair, in the way, when they get tired, they sat under the group where there were many people under it. रास्ते में जाते समय जब बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा होता है, उनके पेरेंट को रियलाइज होता है कि हो सकता है उनका बच्चा थक गया हो, और लोगों को जब वह देखते हैं कि एक बड़े से झुरमुट के नीचे, यानी एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे बैठे हुए लोग सुस्ता रहे हैं, तो वह भी अपने बच्चे के साथ आराम करने लगता है। थोड़ी ही देर में आफ्टर सम टाइम द चाइल्ड began to get the petal falling from that very roof which was overladen with the flowers. वह पेड़ जो कि पूरी तरह से फूलों से लदा हुआ था, थोड़ी देर बाद बच्चे का मन उस पेड़ से गिरने वाली पेटल्स मीन्स पंखुड़ियों में रम जाता है और वह पंखुड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। उसके माता पिता आगे मेले की ओर चल पड़ते हैं, तब वह उसको अपनी ओर बुलाते हैं। फिर बच्चा जैसे गाय का बच्चा उस गाय के रमाने पर उसकी ओर दौड़ा चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह बच्चा भी अपने माँ बाप के पुकारने पर उनके पीछे दौड़ता हुआ जाता है। The fair and its attractions मीन्स मेले की सुंदरता कैसी थी, उसका आकर्षण कैसा था, इसको डिस्क्राइब करता है। राइटर कहता है The fair was very beautiful. There were too many shops in the fair and the child was attracted towards them according to their attraction or his liking. वो बच्चा जब मेले की ओर बढ़ता है तो वहाँ देखता है कि तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। थोड़ी देर के लिए उस बच्चे का मन रास्ते में रखी हुई खिलौनों की दुकान पर ठिठक जाता है और अपने माता पिता से वह आग्रह करता है कि उसको खिलौने दिलाए जाएं, लेकिन उनकी ओर से, उनके माता पिता की ओर से उसके लिए उसे डिनाई कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है कि उसको खिलौने नहीं दिलाए जाएंगे। आगे वह बढ़ता है तो देखता क्या है, वहाँ मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं, बहुत से लोग उस दुकान पर खड़े हुए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और मिठाई बेचने वाले तरह तरह के नामों से मिठाइयों का नाम दे दे करके, आवाज़ दे करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और लोग उनको खरीद रहे हैं। थोड़ी देर और आगे बढ़ने पर बालक क्या देखता है कि वहाँ सपेरा सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा रहा है। थोड़ी देर के लिए बच्चा वहाँ भी रुकता है और देखना चाहता है, लेकिन माता पिता के द्वारा डिनाई कर दिया जाता है। इसी तरह से बांसुरी बेचने वाले और गुब्बारे वाले के पास से जब गुजरता है तो जब वह आग्रह करता है कि उसे वह चीज़ें दिलाई जाएं, तो उसके माता पिता उसके लिए भी उसे मना कर देते हैं। एट लास्ट दे रीच टू अ वेल स्विंग, जहाँ वह गोल घेरेदार झूले के पास पहुँचता है, अपनी माता और पिता से आग्रह करता है कि उसे वह झूला झूलने के लिए दिलवाएं, लेकिन माता पिता के द्वारा यह कह करके डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि यह झूला बड़े लोगों के झूलने के लिए है, छोटा बच्चा उस पर झूलने में सक्षम नहीं हो सकता, उसके लिए नुकसानदेह है, वह परेशान हो सकता है, चोटिल हो सकता है। और क्योंकि बच्चे का मन उस झूले में रम गया था, वह झूले को एक टक निहारता रहता है। इसी बीच उसकी उपस्थिति से अनजान उसके माता पिता से वह बिछड़ जाता है, माता पिता आगे निकल जाते हैं और वह वहीं रह जाता है। लेकिन फिर जब उसे अपने माता पिता की याद आती है और वह कहने के लिए मुड़ता है, फिर से आग्रह करने के लिए मुड़ता है कि उसे झूले पर झूलने का अवसर दिलाया जाए, वह देखता है उसके माता पिता वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। बच्चा चिल्लाना शुरू करता है, रोने लगता है। सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, व्हाट हैपेंड व्हेन ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है तो क्या होता है। द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वाज वेरी बैड, he felt pity, someone felt pity when he saw them. He was searching his parents to and fro and crying bitterly. He went to the temple, some other places where he has asked from his parents to get things from him. हर जगह वह जाता है जहाँ जहाँ उसने अपने माता पिता से आग्रह किया था कि उन्हें यह चीज़ें दिलाई जाएं। अंत में वह मंदिर के पास जाता है जहाँ ढेर सारी भीड़ इकट्ठा रहती है।
समहाउ वह किसी तरह से बीच में से होकर के गुजरते हुए आगे बढ़ता है और अपने माता पिता को पुकारता है। थोड़ी देर में बच गया, बच्चा बाल बाल बच गया जब वह एक मोटे व्यक्ति के पैरों तले कुचले जाने से बचा। उसी बीच में किसी सज्जन पुरुष की निगाह उस पर पड़ती है और वह उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे तरह तरह की चीज़ें दिलवाने के लिए उसे प्रेरित करता है, लेकिन बच्चा बुरी तरह से रो रहा है और अपने माता पिता को खोज रहा है। A striking change in its behavior, वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले अपने माता पिता की उपस्थिति में उन आकर्षक चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहा था, अब वह सज्जन उसे चुप कराने के लिए जब उन्हीं चीज़ों को दिलवाने के लिए कहते हैं तो वह कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए बल्कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। सबसे पहले वह उस बच्चे को चुप कराने के लिए झूले की ओर लेकर जाता है और झूलने के लिए कहता है, लेकिन वह बालक उसके लिए पूरी तरह से मना कर देता है। फिर वह स्नैक चार्मर यानी जो सपेरा है उसके पास जाता है और कहता है कि इन सांपों का करतब देखो, लेकिन बच्चा उसे पूरी तरह से डिनाई करता है। वह उसे बांसुरी और गुब्बारे दिलाने की बात करता है, लेकिन बच्चा मना कर देता है और कहता है कि मुझे यह कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। अंत में थक हार कर वह व्यक्ति सोचता है कि बच्चों को मिठाइयाँ प्रिय होती हैं, वह मिठाई की दुकान पर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी स्वादिष्ट बर्फी खिलाऊंगा, लेकिन बच्चा कहता है मुझे स्वादिष्ट बर्फी नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी माँ चाहिए, मुझे केवल मेरे पिता चाहिए। इस लेसन में जो स्टोरी राइटर है उन्होंने एक बच्चे के जो अपने माँ के साथ होता है और माँ की अनुपस्थिति में होता है उसके बिहेवियर के बारे में प्रिस्क्राइब किया है। डियर स्टूडेंट्स, learn the summary with the help of this video. We will meet with the chapter in the next video. Till then, thanks.